coming to the type 3 questions which have been asked in NDA and CDS from the topic quadratic equation. The type 3 questions are based on algebraic formula or algebraic expression. ठीक है. This very first question has been asked in NDA 1 2022. We have to find out the value of Q from this quadratic equation, and this relation has been given to us. So finally we know alpha plus beta, sum of the roots will be equal to minus b upon a, which will be equal to 8. Using this relation and this algebraic identity, we will finally get the value of alpha minus beta is equal to 2. On adding these two equations, we will finally get alpha is equal to 5, and again by using any of these two equations, beta will be equal to 3. इतना समझ में आया होगा. Now we know कि product of the roots is equal to C upon A. Here it is equal to Q. So Q will be equal to 5 3 hours 15. ठीक है. The very next question is, if x square plus x plus 1 is equal to 0, then we have to find out the value of this expression. अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ढंग से देखें तो इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, और दिस इज़ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेकिन हमें यहाँ पे रूट्स कैलकुलेट नहीं करने. ठीक है, रूट्स कैलकुलेट नहीं करने. सो द ईजीएस्ट अप्रोच इज़ कि हमें इस एक्सप्रेशन में नज़र आ रहा है कि x टू द पावर 199 इज कॉमन, तो इसके बदले बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, and now we know कि this expression is equal to 1. So finally this multiplied by 0 will give us result is equal to 0. समझ आया होगा ये? Coming to the next question, if these two are the roots of this quadratic equation, then we have to find out the relationship between a, b and c. Now we know the sum of the roots is equal to minus b upon a, and product of the roots is equal to c upon a. If we square this equation, then we will get a square plus b square plus 2ab is equal to this square. Now we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1 plus 2, and this we know is equal to c upon a. On taking LCM, we will get a plus 2c upon a is equal to this. Now we will eliminate 1a from a, and on cross multiplying, this will be equal to a square plus 2ac is equal to b square, and this is equal to 2ac. This was in the option given in the question, so this is the correct expression. Otherwise we can also leave answer at this spot. This question is very very important, not only from the NDA perspective but also from CDS as well as SSC exams perspective. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें अल्फा बीटा दो रूट्स दी हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द समेशन ऑफ j फ्रॉम 0 to 3 फॉर दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ? वी हैव टू फाइंड दिस प्लस j को अब 1 से रिप्लेस कर देंगे, फिर j को 2 से रिप्लेस कर देंगे, और फिर j को 3 से रिप्लेस कर देंगे, और इन चार हमें पता है इसका आंसर आएगा 2. ये ऑलरेडी वी नो दिस इज इक्वल टू -1. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें नहीं पता, तो इसको हमने क्या कर दिया, इम्प्रोवाइज करके इस तरीके से लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा. ये ध्यान देना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे एनडीए के लिए, ठीक है, जिसमें हमें इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में बदलना होगा. ठीक है, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एनडीए में जहां पे हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैलकुलेट करना पड़ सकता है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. इतना समझ में आया होगा. अब यहां तक तो बात बन जाएगी, यहां पे तक भी बात बन जाएगी. अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिखा जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और एक अल्फा बीटा नेगेटिव ऑलरेडी हमारे पास है, तो टोटल कितना बन जाएगा? -3
अल्फा बीटा। ये बात आ गई होगी समझ में। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसको इन फॉर्मेट्स में चेंज करने के बाद क्या हुआ, हमें इसकी भी वैल्यू पता है और इसकी भी वैल्यू पता है। ये समझ में आया होगा। इसका आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि इसकी 1 + 1। इसका आंसर कितना आएगा, -1। इसको हमने इस फॉर्म में लिखा था तो इसका स्क्वायर आएगा 1 में से माइनस हो जाएगा कितना, 2, तो कितना आएगा -1। अब आखिरी में इसको देखते हैं, इसकी वैल्यू है -1, इसका स्क्वायर करने पे आएगा 1 और उसमें से माइनस कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना आएगा हमारे पास -2। -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू 2। ये आपस में सब कट जाएंगे तो बचेगा सिर्फ यहाँ वाला रिजल्ट, जो कि किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ये समझ में आया होगा। द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन CDS, और आगे भी ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं CDS में, ठीक है। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं CDS में, क्वाड्रेटिक पे बेस्ड क्वेश्चन। की खास बात ये है कि दोनों के टर्म्स जो ये LHS में है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसको a मान लेंगे तो ये 1/a बन जाएगा, और इस बड़े से एक्सप्रेशन को हम सिंपली लिख सकते हैं a - 1/a इज इक्वल टू 3/2। अगर हम LHS में एलसीएम लेंगे तो हमें डिनोमिनेटर क्या मिलेगा, तब भी a ही मिलेगा, और RHS में जो डिनोमिनेटर है वो है 2, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर है इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर प्राइम नहीं होता तो हम कंपेयर नहीं करते। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी कंपेयर करने पे, 2। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 ऑन स्क्वायरिंग वी विल गेट दिस, और फाइनली हमें काट पीट करके आंसर कितना मिल जाएगा, x = 2। टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे हमने अभी देखा, दिस क्वेश्चन अगेन हैज बीन आस्क्ड इन CDS, एंड द स्पेशलिटी ऑफ द क्वेश्चन इज द LHS में जो दो टर्म्स हैं दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। लेट अस अज्यूम दिस इक्वल टू a, देन दिस विल बी 1/a, so this expression will be equal to this. Now since 6 is not a prime number, so we cannot directly say that a is equal to 6. ये सभी चांसेस बनते हैं a होने की, a की पॉसिबिलिटी, क्योंकि a के जो फैक्टर्स हैं वो ये और ये हैं, तो a इन सब के इक्वल होगा। हमने जब इधर वाले को ऐड करके देखा, दैट इज नॉट इक्वल टू 13/6, तो a को हम इनमें से किसी को भी मान सकते हैं। मैंने एज्यूम कर लिया a = 3/2, so this expression will be equal to 3/2, and on further operation हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9/13।